See now, the remaining part of this lesson, The Enemy, written by Pearl S. Buck. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was this moment, ये वो अब क्षण था जब दोनों ने देखा something black come out of the mist. उस धुंध या कुहासे से कोई ब्लैक चीज बाहर आ रही थी. It was a man, एक आदमी था. He was flung up out of the ocean. वो उछाल दिया गया था ओशियन के द्वारा. Flung, it seemed, flung, उछाल दिया गया. It seemed to his feet by a breaker means by the waves of the sea. He staggered a few steps. Stagger means to walk with trembling steps. He staggered a few steps. His body outlined against the mist. उसके बॉडी की आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट दिखाई दे रही थी. His arms above his head, और उसके हाथ उसके सिर के ऊपर. Then the curled mist hid him again. Curled means जो बल खाती हुई धुंध थी, उसने उसे फिर से कवर कर लिया था. Who is that? Hannah cried. Hannah चिल्लाई, वो कौन है? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. She dropped Sadao's arm, उसने सदाओ के हाथ को छोड़ दिया. And they both leaned over the railing of the veranda. और वो दोनों जो वरांडा की रेलिंग थी उस पर झुके. Now they saw him again. अब उन्होंने उसे फिर देखा. The man was on his hands and knees crawling. वो आदमी अपने हाथ और घुटनों पर रेंग रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. तब उन्होंने उसे देखा कि अपने फेस के बल गिरा and lie there, और वहीं पर लेटते हुए लेट गया या उसे लेटते हुए देखा. A fisherman, perhaps, Sadao said, washed from his boat. सदाओ ने कहा कि शायद एक कोई फिशरमैन है जो अपनी नाव से बाहर आ गया है, नाव से बहकर आ गया है. Washed from his boat. He ran quickly down the steps. Behind him, Hannah came. वो बहुत तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे हना आई. Her wide sleeves flying. उसकी चौड़ी जो बाँह थी वो उड़ रही थी. A mile or two away on either side there were fishing villages. एक या 2 मील दोनों तरफ फिशिंग विलेजेस थे. But here was only the bare and lonely coast. लेकिन यहाँ पर केवल खाली और सुनसान जो है समुद्री किनारा था. Dangerous with rocks, और चट्टानों के कारण वो काफी डेंजरस था. The surf beyond the beach was spiked with rocks. The surf beyond the beach, जो बीच से दूर जो वहाँ की एरिया थी, was spiked with rocks means उस पर नुकीले जो है रॉक्स थी. Somehow the man had managed to come through them. लेकिन किसी तरह से उनसे आकर आने के लिए मैनेज कर लिया था आदमी ने. He must be badly torn. Torn, just like you know the Hindi meaning is फटा हुआ, but here you have to take the meaning of the word torn. He was badly wounded or badly injured. वो बुरी तरह से घायल था. They saw when they came towards him that indeed it was so. उन्होंने उसे देखा. When they came toward him, जब उसकी तरफ वो आए, that indeed it was so. ये वास्तव में ऐसा था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. The sand on one side of him, उसके एक तरफ की जो सैंड थी, रेत थी, had already a stain of red, उस पर लाल रंग का धब्बा था. soaking through means जो वास्तव में तर हो चुका था, जिसमें वो उसकी ब्लड ड्रॉप्स जो है सोख चुकी थी. He is wounded, Sadao exclaimed. He is wounded, Sadao exclaimed. सदाओ ने आश्चर्य से कहा या हैरानी से कहा. He is wounded, वो घायल है. He made haste to the man, वो जल्दबाजी में मैन के पास गया.
who lay motionless, his face in the sand, जो motionless जो लेटा हुआ था, his face in the sand, उसका face sand में था. An old cap stuck to his head, soaked with sea water, और एक पुरानी कैप stuck to his head, soaked with sea water, जो कि सी वाटर से भीगी हुई थी. He was in wet rags of garments, in the garments that he was wearing that was wet and torn, और फटा हुआ था, garments जो पहने हुए था, भीगा था. सदाउ stopped, Hannah at his side, सदाउ रुक गया, हना उसके बगल में, and turned the man's head, और उस आदमी के हेड को टर्न किया. They saw the face, उन्होंने उसका फेस देखा. Give the information. Shraddha Singh, hello. Who is the last one to join the class today? From tomorrow your class timing, from tomorrow onwards your class timing will be 10:30 to 11:10. Give the information to the others also, the students, those who are present in the class. A white man, Hannah whispered. एक गोरा आदमी, Hannah whispered means Hannah फुसफुसाई, or she spoke very slowly. Yes, it was a white man. हाँ, ये white man था. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair. Wet cap दूर जाकर गिरी, and there was his wet yellow hair. वहाँ पर जो उसका wet yellow hair था, पीले रंग का बाल था. Long as though for many weeks it had not been cut. इतने लंबे हो चुके थे जैसे कई weeks से, कई सप्ताहों से कटिंग ना हुई हो. And upon his young and tortured face, उसके young और tortured face means the face that was tortured means सताया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो. Was a rough yellow beard, एक सख्त पीले रंग की दाढ़ी थी. He was unconscious and knew nothing that they did for him. He was unconscious means he was almost insane. वो लगभग जो है बेहोश था. He was unconscious, he was insane and knew nothing that they did for him. और वो कुछ भी नहीं जानता जो डॉक्टर सदाओ और हना ने उसके साथ किया. Now Sadao remembered the wound. अब सदाव ने उस उंड या घाव को याद किया. And with his expert fingers he began to search for it. अपने expert fingers, as you know, he was a surgeon and also he had got a lot of knowledge about medicine. तो उसकी एक्सपर्ट जो फिंगर्स थी या निपुण उंगलियां जो थी, उन्होंने उस घाव को ढूंढना शुरू कर दिया. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उसके छूने पर जो है फ्रेश ब्लड बहा. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी लोअर बैक के राइट साइड पर. सदाउ सा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. सदाउ ने देखा कि गन जो का घाव था, गन शॉट का जो वुंड था, घाव था, वो रीओपन हो गया था. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, पाउडर से उसका फ्लैश जो है काला पड़ चुका था. समटाइम नॉट मेनी डेज एगो, कुछ समय, लेकिन बहुत समय, कई दिनों पहले नहीं. द मैन हैड बीन शॉट, आदमी को गोली मारी गई थी. एंड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी देखभाल नहीं की गई थी. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, लेकिन यह उसके लिए बुरा अवसर था, कि दुर्भाग्य था कि घाव से चट्टान टकराई थी, या घाव ही चट्टान से टकरा गया था. When he was washed away by the waves of the sea. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in solemn voice. Solemn means very peaceful or गंभीर. A serious voice में हना बुदबुदाई. How he is bleeding, मतलब किस तरह से उससे खून बह रहा है. The mists screened them now completely. Screened means simply covered. धुंध ने पूरी तरह से उसे ढक लिया था. And this time of day no one came by. दिन के इस समय अब कोई नहीं आया. The fishermen had gone home and even the chance beach combers. Fishermen तो घर जा चुके थे. Even the chance beach combers,
Beachcombers mean the people who were searching the things on the seashore. समुद्र पर जो चीजों को खोजने के लिए लोग आते थे इत्तेफाक से यार बाई चांस, would have considered the day at an end. उन्होंने ये समझ लिया था कि दिन अब खत्म हो चुका है. What shall we do with this man? हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे? सदाऊ muttered, सदाऊ बड़बड़ाया. But his trained hands seemed of their own will to be doing. लेकिन जो उसके ट्रेंड हैंड्स थे उसे अपनी इच्छा से महसूस हुई कुछ करने के लिए. व्हाट दे कुड, जो वो कर सकते थे, टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, इस भयानक ब्लीडिंग को, फियरफुल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. टू स्टैंच मीन्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग, फियरफुल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. उसकी जो ट्रेंड फिंगर्स थी, उसकी अपनी खुद की इच्छा हुई उससे कुछ करने की. He packed the wound with the sea moss. समुद्र के किनारे जो काई जमी हुई थी उससे जो है उसने घाव को पैक कर दिया. That strewed the beach, जो समुद्र किनारे पर फैली हुई थी, बिखरी हुई थी. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. आदमी moaned means simply started weeping or groaning. उस आदमी ने कराहा with pain, दर्द से. In his stupor means in his insanity or in unconscious mind. जैसे उस स्टूपर में बेहोश या बदहवास स्थिति में वो कराहा. But he did not awaken, लेकिन वो जगा नहीं. The best thing that we could do would be to put him back in the sea. सदाऊ said, answering himself. अपने आप को आंसर देते हुए सदाऊ ने कहा कि सबसे अच्छी चीज होगी जो हम कर सकते थे, would be to put him back in the sea, वो होगी कि हम इसे वापस सी में रख दें. Now that the bleeding was stopped, for the moment he stood up and dusted the sand from his hands. अब जब ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी इस क्षण के लिए, वो खड़ा हुआ. and dusted the sand from his hands, अपने हाथों से जो है उस सैंड को झाड़ दिया. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily. Steadily means firmly. Hannah ने सख्ती से कहा. और with her determination she said, हाँ, undoubtedly, निसंदेह, that would be best, वही सबसे अच्छा होगा. But she continued to stare down at the motionless man. Motionless man पर उसने जो है एक टक देखना जारी रखा. The man who was not moving at all. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. सदाव ने कहा कि अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर देते हैं, अपने घर में उसे आश्रय देते हैं, we should be arrested, हमें गिरफ्तार होना चाहिए. And if we turned him over as a prisoner, अगर हम उसे एक कैदी के रूप में हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को, तो he would certainly die, वो निश्चित रूप से मर जाएगा. The kindest thing would be to put him back into the sea. जो सबसे बड़ी दयालुता की चीज होगी वो यही होगी कि हम वापस उसे सी में रख दें. Hannah said, हन्ना ने कहा. But neither of them moved, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Curious repulsion, जिज्ञासा से भरा हुआ. Repulsion means this is the just opposite of the word attraction. Means अनिच्छा से या बिना विकर्षण के साथ, जिज्ञासा भरे विकर्षण के साथ उस inert figure को देखते रहे. Inert figure means the figure that was not acting, that was completely inactive. What is he? वो क्या है? Hannah whispered. Hannah फुसफुसाई. See the next sentence, next paragraph. There is something about that looks American. उसके बारे में कुछ ऐसी चीज है जो अमेरिकन दिखाई देती है. सदाव said. सदाव ने कहा. He took up the battered cap. Battered means the very old cap. As they are almost gone was the faint lettering.
जो लगभग जा चुका था. Faint lettering mean the faint letters were written. Faint spellings were written. A sailor, he said. उसने कहा एक नाविक. From an American warship. एक अमेरिकन वारशिप से. He spelled it out. उसने स्पेलिंग पढ़ी. US नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार. आदमी जो है वार का एक प्रिजनर या कैप्टिव था, कैदी था. ही हैज एस्केप्ड. हाना क्राइड सॉफ्टली. ही हैज एस्केप्ड मीन्स वो बचकर निकल आया है. हाना क्राइड सॉफ्टली. हाना चिल्लाई. सॉफ्टली मीन्स आसानी से. एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड. और इसी कारण से वो वुंडेड है, घायल है. इन द बैक. सदाओ एग्रीड. सदाओ भी एग्री हो गया. इन द बैक मीन्स इन द बैक, उस पीठ में. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने संकोच किया. देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता के साथ. तब हाना ने कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. आओ. आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. क्या हम इस योग्य हैं कि हम वापस इसे समुद्र में रख दें. इफ आई एम एबल आर यू. सदाओ आस्क्ड. अगर मैं इस योग्य हूं तो क्या तुम इस योग्य हो. सदाओ ने पूछा. नो सेड हाना, बट इफ यू कैन डू इट अलोन. लेकिन अगर आप अकेले से कर सकते हो तो. सदाओ हेजिटेटेड अगेन. द strange thing is, he said, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty. सदाओ ने फिर से हेजिटेट किया. द strange thing is, सबसे विचित्र बात यह है, उसने कहा, इफ द मैन वर होल मीन्स अगर वो आदमी पूरा होता है. इफ ही वॉज नॉट बैडली wounded, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. तो टर्न ओवर मीन्स हैंड ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. तो बिना किसी परेशानी के मैं उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देता. आई केयर नथिंग फॉर हिम. मैं उसके बारे में कोई परवाह नहीं करता हूँ. ही इज माई एनिमी. वो मेरा एनिमी है, दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी. सारे अमेरिकन मेरे एनिमी हैं. एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो. ये तो केवल एक साधारण आदमी है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज. तुम देखती हो कितना बेवकूफ़ी भरा हुआ इसका चेहरा है. बट सिंस ही इज wounded, लेकिन क्योंकि ये घायल है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी. हाना सेड. आप भी वापस इस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो. हाना ने कहा, then there is only one thing to do. We must carry him into the house. तो एक ही चीज़ हमारे पास करने के लिए है, हमें अवश्य इसे अपने घर में ले जाना चाहिए. बट द सर्वेंट्स. सदाओ इंक्वायर्ड. सदाओ ने पूछा, लेकिन सर्वेंट्स. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. हमें क्या करना है कि हमें सिंपली उन्हें बता देना चाहिए कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. हम इंटेंड मीन्स टू हैव इंटेंशन, इरादा रखना, कि हमारा इरादा है कि हम उसे पुलिस को दे दें. एज इंडीड वी मस्ट. जैसा कि वास्तव में हमें करना चाहिए. सदाओ. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन. हमें उस बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और आपकी पोजीशन के बारे में. इट वुड endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war. It would endanger all of us. ये हम सबको खतरे में डाल देगा अगर हम इस आदमी को नहीं देते हैं एक प्रिजनर ऑफ वार के रूप में, एक वार के कैदी या युद्ध बंदी के रूप में से हैंड ओवर नहीं करते हैं पुलिस को. सर्टेनली. सदाओ एग्रीड. सदाओ सहमत हो गया निश्चित रूप से. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. मैं इसके सिवाय और कुछ करने के बारे में नहीं सोचूंगी. दस अग्रीड. टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. इस तरह से सहमत होकर दोनों साथ साथ आदमी को उठाए. ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल. एक मुर्गे की तरह. वो बहुत हल्का था. दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम until it is only feathers and skeleton. जैसे इसे आधा भूखा रखा गया हो बहुत लंबे समय से, जब इसके पास खाली फीदर्स और स्केलेटन या बोनी फ्रेम बचे हों. सो हिज आर्म्स हैंगिंग. दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स. उसके हाथ लटके हुए
वह उसे स्टेप सीढ़ियों पर ले गए एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के साइड डोर पर। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, यह दरवाजा एक रास्ते में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज में आगे की तरफ ले गए एक खाली बेडरूम में। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये सदाउ के फादर का बेडरूम था और उनकी डेथ के बाद से ये यूज नहीं किया गया था। It had been from this line, they laid the man on the deeply matted floor, एक गहरी मैट जो मोटी सी मैट लगी हुई थी फ्लोर पर, उस पर आदमी को लिटा दिया। Everything here had been Japanese to please the old man, यहाँ पर हर एक चीज जापानीज थी उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए। Who'd never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो अपने होम में किसी भी चेयर या फॉरेन बेड पर वो नहीं बैठते थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना जो है वॉल कबर्ड के पास गई। एंड स्लिड बैक अ डोर, एक दरवाजे को सरकाया। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक मुलायम क्विल्ट या रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड, उसने संकोच किया। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्विल्ट पूरा ढकी हुई थी फ्लावर्ड सिल्क से। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क,